friends, I hope you all are well and good and hopefully enjoying the lockdown. Today I'm here with another video which is in continuation with the previous one. In the previous video we have talked about the departments and the subjects related to those dental departments. So we have talked about the 11 subjects which are related to the dental departments. But as we know that in dentistry there are total 19 subjects, so the rest of the 8 subjects which belong to the medical departments, we will talk about them today in our video. So let's begin. The subjects related to medical departments which we study in dentistry. Okay, so these are total of 8 subjects, but we give 6 exams. I'll tell you why. So the subjects are human anatomy, embryology, histology, and medical genetics. So this is a combined one subject with its parts. This we study in our first year, and we give a single paper of all these parts. I will introduce you with the subject and its parts when I'll talk about the books related to it. Well, here let us see about the next subject. It is human physiology and biochemistry. Human physiology is also a first year subject, and biochemistry too. I mean, this is also from first year. These are two different subjects of two different departments, but in dentistry we give a single combined exam of these two subjects in our first year. So next is general pathology and microbiology. These are second year subject. Like physiology and biochemistry, these also belong to different departments. These are two different subjects, but in dentistry we give a single exam, a single combined exam of these two subjects. Okay, now coming to the next one is pharmacology, general and dental pharmacology and therapeutics. So this is a very important subject about the medicines. We study about this subject also in our second year. And we give single paper of pharma alone, and a combined paper of general pathology and microbiology in our second year. Next is general medicine and general surgery. These subjects are of third year, belongs to two different departments, and these are also very important subjects. So we can see that total there are 8 subjects, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, but because we give combined exam of human physiology and biochemistry and as well as general pathology and microbiology, so the exam is counted as 6, not 8. Now let us summarize all these dental and medical subjects according to their respective academic years. Here we go. So guys, now let us discuss about the very important topic, that is which book to prefer for studying these subjects. In this video, I will only talk about the books of first year subjects. In my upcoming videos, I'll also inform you about the books of second to final year. So let's begin. The first subject is dental anatomy, oral histology and embryology.
This is very important subject, and for this we refer to two books, that is Wheeler's for dental anatomy and Orban's for oral histology. Some students find Wheeler's as well as Orban a bit difficult क्योंकि उसमें चीज़ें थोड़ा elaborate way में दी हुई हैं, but these are the books which should be referred. So आपको अगर start करना है तो there are other options for oral histology and embryology, that is माजी जोस, बट उसमें से सिर्फ आपको डायग्राम देखना है और अपना इनिशियल स्टार्ट करना है. आंसर्स जो होंगे वो ऑर्बन से ही होना चाहिए. उसी तरह डेंटल एनाटमी में भी अगर आप एक बार टूथ की एनाटमी से फैमिलियर हो जाते हैं, उसके बाद आपको डेंटल एनाटमी पढ़ने में व्हीलर्स से पढ़ने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी. ऑल्सो आई एम देयर विथ यू. आई विल अपलोड सम ऑफ द लेक्चर्स फ्रॉम व्हीलर्स एज वेल. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ ह्यूमन एनाटमी. In this, we study about the anatomy of the human body, as well, and also embryology and histology. But for dental student, the whole body is not important. Our field of interest is head and neck part. हमें head and neck की anatomy ही अच्छे से आनी चाहिए. लाइक कौन सी मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, कहाँ पे जाकर इंसर्ट हो रही हैं, कौन सी नर्व्स जा रही हैं, कहाँ से जा रही हैं, वेसल्स कहाँ से, कौन सी वेसल्स जा रही हैं. सो ह्यूमन एनाटमी के लिए हम बुक प्रेफर करते हैं बी.डी. चौरसिया. बी.डी. चौरसिया की मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 4 वॉल्यूम अवेलेबल है, बट हमें प्रेफर करना होता है 3rd वॉल्यूम विच इज़ हेड एंड नेक पार्ट. मेडिकल की बुक अवेलेबल है विच इज़ इन डिफरेंट वॉल्यूम्स, बट हमें एक ही वॉल्यूम लेना होता है. साथ ही मैंने खुद यूज़ नहीं की है, बट मैंने देखा है मार्केट में डेंटल की भी BDC अवेलेबल है, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू, पर्सनली आई विल नॉट सजेस्ट यू, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक या तो आप पढ़िए और मेडिकल वाली ही पढ़िए. डेंटल वाली मुझे नहीं पता उसमें क्या एक्स्ट्रा दिया या क्या उसमें से एलिमिनेट कर दिया है. सो अगर आप अभी से अपना पीजी के लिए अच्छा बेस बनाना चाहते हैं तो आप अच्छी बुक ही पढ़िए. सो आई थिंक BDC इज़ बेस्ट. BDC ये थ्योरी पार्ट के लिए हो गया. इसके साथ ही एक हैंडबुक भी है BDC की. सो वाइवा के लिए आप हैंडबुक प्रेफर करिए तो अच्छा रहेगा. फॉर एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, IB सिंह, इंद्रबीर सिंह इज़ वेरी गुड बुक. कीप इन माइंड दैट हमें पूरा नहीं पढ़ना होता है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में भी हम वही पढ़ते हैं जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ पैरेंजियल आर्चेस, डेवलपमेंट ऑफ फेशियल रीजन, डेवलपमेंट ऑफ जॉ, या फिर डेवलपमेंट ऑफ टंग एक्सेट्रा. सो इसके लिए IB सिंह बेस्ट बुक है. नेक्स्ट इज़ हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में वी स्टडी अबाउट द टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स. ये सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए भी बेस्ट बुक IB सिंह है, बट उसमें से हम सिर्फ हिस्टोलॉजी का वो पार्ट पढ़ते हैं जो हमें हमारे लैब में दिखाया जाता है, जो भी स्लाइड्स दिखाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग. ओके, सो नेक्स्ट इज़ BChem या बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में हम जो भी साइकिल्स होती हैं कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म की, जैसे कि कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा, इसके बारे में पढ़ते हैं. इसके लिए भी कुछ बुक्स हैं जैसे कि वासुदेवन, सत्यनारायण, लेकिन मैंने प्रेफर की थी अपने टाइम पे वासुदेवन. इसकी भी डेंटल की अलग बुक आती है, बट मैं इसकी डेंटल वाली बुक पढ़ने का सजेशन नहीं दूंगी. मैं यही कहूँगी कि आप मेडिकल वाली ही पढ़िए, बट टॉपिक वो पढ़िए जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो और इम्पॉर्टेंट हो. वो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगी. नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी. इसकी स्टैंडर्ड बुक गाइटन या गैनोंग्स है. अगर आप अपना बेस बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं पीजी के लिए तो आप इसको पढ़िए. आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप इसी को पढ़िए, बट अगर नहीं तो AK जैन. इसकी भी डेंटल की AK जैन आती है, बट मैं फिर से वही कहूँगी कि इसकी भी आप मेडिकल वाली ही पढ़िए तो बेटर रहेगा, लेकिन टॉपिक वो पढ़िए जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो. एक बात और मैं एक एक्स्ट्रा में बताऊँगी कि अगर आप MCQs के पर्पज़ से पढ़ना चाह रहे हैं तो अरविंद अरोरा इज़ अ वेरी गुड बुक, जिसमें कि BChem एंड फिजियोलॉजी का पार्ट कंबाइन करके दिया हुआ है. इस बुक की एक और खासियत है कि इसमें चैप्टर की समरी बहुत अच्छी दी हुई है. तो अगर आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो इस बुक को लीजिए और उसकी समरी भी ज़रूर पढ़िए. काफ़ी अच्छे ईजी वे में समरी दी हुई है. अरविंद अरोरा ह्यूमन एनाटमी की भी अवेलेबल है,
बट मैं इसे ख़रीदने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि हमें एनाटॉमी में सिर्फ वॉल्यूम 3 यानी कि हेड एंड नेक वाला पार्ट ही पढ़ना होता है, इसलिए पूरी बुक लेना इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। सो आप किसी से लेकर उतना पार्ट ज़ेरॉक्स कराकर भी पढ़ सकते हैं। एमसीक्यूज़ अगर आपको डेंटल एनाटॉमी ओरल हिस्टोलॉजी का सॉल्व करना है तो डेंटल पल्स इज़ द बेस्ट बुक, बट उसे भी मैं यही कहूँगी कि आप डेंटल पल्स अपनी खुद की मत खरीदिएगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि जब तक आप फाइनल ईयर इंटर्नशिप तक पहुँचते हैं तब तक उसका एडिशन चेंज हो गया होता है, और डेंटल पल्स ही हम प्रेफर करते हैं हमारे पीजी की प्रिपरेशन के लिए। सो अभी आप सिर्फ किसी सीनियर से या जिसके पास बुक अवेलेबल हो उससे लेकर ज़ेरॉक्स इतना ही सब्जेक्ट का पार्ट ज़ेरॉक्स करा लीजिए एंड फिर उसे सॉल्व करिए। अदर दैन दीज मेन सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जो कि फाइनल ईयर के हैं, प्रोस्थोडोंटिक्स एंड एंडोडोंटिक्स, ये भी हमें फ़र्स्ट ईयर से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जैसा कि कुछ बच्चे बुक फर्स्ट ईयर से ही ख़रीद लेते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर में बुक मत खरीदिए। सेम रीज़न, एडिशन चेंज हो जाएगा। आपको फर्स्ट ईयर में सिर्फ कुछ चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं, 1 या 2 चैप्टर, तो उतना पार्ट आप किसी भी सीनियर से लेकर ज़ेरॉक्स करा सकते हैं। So this was all about today. I hope you find my video informative. So guys, give me a thumbs up if you like my video, and yes, don't forget to subscribe my channel and press on the bell icon. So see you in the next video. Till then, bye bye, take care.